चलो, so let's start now. Before we start, ये बताओ कि इस बार सीपीटी किसके है? केमिस्ट्री या केमिस्ट्री तो शायद हो चुका है. मैथ्स है. मैथ्स. चलो ठीक. कल सीपीटी है. एक्चुअली सीपीटी के टाइम मुझे जो है एक आईडी पासवर्ड देना पड़ता है. इसी में पूछता हूँ. Okay, so some people are still on the doorstep. Prithvi and Madan. So let's start from where we left yesterday. Yesterday we had talked in details about number of fringes. I hope that concept is now clear. And we also talked about Lloyd's mirror. Today we will talk about first another YDSC kind of setup. So like what we are discussing now is YDSC like setup. Okay, that's what we are mainly discussing. So setups which are similar to YDSC. Meaning YDSC okay. There are quite a few. You already talked about Lloyd's mirror, which is one. Today we are going to talk about what is called as billet lens. This is also a little detailed method of it. This is called as billet lens method. Or you can say split lens. So what is there in split lens? Let's see. In the meanwhile, good morning messages from Karthik, Dhruv, Rachit, Kushi, Pratyaksh, Aryan, Shivam, Jay Goyal, Dhairya, Satyan, Kanan. Chalo. What is exactly billet lens? Oh, some people are still in the meeting. What is billet lens really? It is like this, that suppose a lens is there and it is cut up. इस आधा आधा कट कर दिया. कैसे कट किया ना? अगर इसका 3D फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा. This is how it has been cut up. So I hope you are getting what I am trying to say. ठीक है ना? So though this figure is good enough, but then I just also draw the 3D figure so that you can understand. ठीक है? ये कटिंग वाला सर. यहाँ पे जो है हमने कट कर दिया. So this is what is a split lens or a billet lens. Billet lens is as per the name of the scientist. इसमें क्या किया गया ना? एक लेंस ऐसे रखा गया. और एक ऐसे. और ये बीच का लाइन है. स्क्रीन यहाँ पे है as usual. There is a single source here. ठीक है? There is a single source here, SMN, which is suppose at a distance of 30 centimeter. Not really. Which is at a distance of suppose 10 centimeter. And this is a focal length, suppose 20 centimeter. Okay. So the lens is a focal length 20 centimeter, and the source is at a distance of 10 centimeter. And after cutting the lens, they have been slightly separated by suppose a distance of so the separation is suppose 0.4 millimeter. ठीक है ना? इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है सपोज 0.4 मिलीमीटर और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस हो गया सपोज 10 सेंटीमीटर और लेंस से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है
वो है मान लो 3 meters. Question is find the fringe width. Question is find the fringe width. So I'll just repeat in brief. I mean ये billet lens split lens है. लेंस को ऐसे कट करके स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके थोड़ा सा गैप बना दिया. कितना गैप बनाया ना 0.4 मिलीमीटर. और ये लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर दूर एक सोर्स है और सोर्स का जो लैम्डा है वो गिवन 6000 angstrom. You will see that there is a pattern formed out here. ठीक है ना? The question is to find out. कार्तिक सेट की सर इसका इमेज नहीं बन जाएगा. इमेज बनेगा तभी तो YDAC की तरह हो जाएगा. तभी मैंने बोला ना YDAC लाइक सेटअप्स. तो यहाँ पे तो YDAC है ही नहीं. यहाँ पे तो एक ही सोर्स है. तो फिर YDAC में तो 2 सोर्स चाहिए. भले ही सेकेंडरी सोर्स हो बट 2 सोर्स चाहिए. वो कैसे बनेगा? वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो सोर्स है, चलो अब मैं हिंट क्या दूं. आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा होगा. सो कार्तिक व्हेन यू आर सेइंग कि इसमें इमेज नहीं बन जाएगा, द आंसर इज बिल्कुल सही बात है. इमेज बनेगा और उस इमेज के चक्कर में ही तो पूरा फेनोमेना होगा अच्छे से, है ना. चलो सो गो अहेड. सबसे पहले तो ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस क्या होगा? 1/v. आई थिंक लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. तो 1/v minus 1/u, u मतलब -10 is equal to 1/f, f मतलब 20. ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. यानी v is equal to, एक काम करें इसको 3 मीटर, चलो 3 मीटर है. v is equal to -20 सेंटीमीटर. अब पता क्या होगा, ये जो 2 लेंस है ना इसके वजह से 2 इमेज बनेगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअली इस लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो ये है, वो ये मेन लाइन थोड़ी है. दोनों लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग लाइन है. ये जो बीच का डार्क लाइन नहीं है. ऊपर वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, नीचे वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये है. यानी ऊपर वाला लेंस क्या करेगा, तो इसको समझो. ऊपर वाला लेंस क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया मान लो ये. अब ये बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए दिखेगा नहीं, बट आई कैन कंसिडर कि ये वाले जो है ना 0.4 है, तो यानी ये हो जाएगा 0.2. और ये वाला भी हो जाएगा 0.2. यानी समझो कि हो क्या रहा है. इस बार पता है क्या हो रहा है, दोनों लेंस में 0.2 हाइट के एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके हिसाब से एक इमेज बनेगा मैग्निफिकेशन के साथ.
है या नहीं? तो वो देखना है तुमको। अच्छा, मैग्निफिकेशन कहाँ बनेगा? पहली बात तो ऑन द सेम साइड होता है, यानी अगर देखोगे तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो गया? इसका मैग्निफिकेशन हो गया v by u। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके इसके 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट हो गया 0.2, लेकिन इसका हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 0.2 मिलीमीटर इनटू मैग्निफिकेशन, यानी 0.4 मिलीमीटर। अच्छा, इस बार क्या हुआ? बाय चांस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सेकेंड लेंस पे इसका इमेज बन जाएगा 20 यहाँ पे, यानी अगर इसको लेंस 1 बोलो, इसको लेंस 2 बोलो, तो ये इमेज बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर I1। और सिमिलरली लेंस 2 की वजह से जो इमेज बनेगा वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे बन जाएगा, तो पहले वाले लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे बन जाएगा, एंड दैट इज I2। यानी ये अब सोर्स 1 और S2 हो गया। तो I1 हो गया S2 लेंस से, एंड I2 हो गया इस बार S1। दिस इज व्हाट इज द एंटायर स्टोरी, ठीक है ना? यानी बेसिकली क्या हो गया? तो देयरफॉर हमें अपनी गया इस केस में स्मॉल d इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि यही तो सोर्स हो गया। इसका इस लेंस का इमेज यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस का इमेज यहाँ पे है, और बाय चांस दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन अपने अपने नहीं, दूसरे के प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो अगर मैं ये वाला लेंस लेता हूं तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका इमेज ये बन गया, ये। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट बन गया फॉर द अदर वन। यानी बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल बनाऊं तो कुछ ऐसे बनना कि ये लेंस है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ये सेंटर लाइन हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। और बाई चांस इस केस में ये हो रहा है कि मैग्निफिकेशन को इंक्लूड करने के बाद ये इसका इमेज बन गया, ये लेंस 1 का इमेज बना। तो इसी का अगर लेंस 2 का लेते हो तो ये ऑब्जेक्ट हो, और इसका इमेज भी इसी पे आ गया, ऐसे कर। इसलिए दो इमेजेस आ गए, दो इमेजेस आ गए, एक इमेज यहाँ पे आ गया और एक इमेज इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यानी ये सोर्सेस बन गए फिर अब, यानी वैसे तो है एक ही सोर्स, लेकिन लेंस के बाद यानी अगर मैं रे डायग्राम बनाता हूं, रे डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर रे डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे करके यूं आ रहा है, तो उसका ये सोर्स हो गया मान लो, है ना? जो भी है इस तरीके का। और इधर से भी ऐसे करके कुछ बनना है इस तरीके से। ये सोर्स बन गया, यानी एक सोर्स हट गया, अब ये सोर्स आ गया, और स्क्रीन तो है ही। यानी स्मॉल डी 0.4 आ गया, कैपिटल डी कितना आ गया? कैपिटल डी आ गया 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया यहां से 20 सेंटीमीटर, और यहां से 3 मीटर है, यानी और लैम्डा तो है ही 6000 एंगस्ट्रॉम, है नहीं? यानी फ्रिंज विड्थ कितना आ गया? अभी तक वैसे किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, आई डोंट नो क्यों, कठिन लगा इतना ज्यादा, पहली बार है इसकी। तो देयरफॉर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा 6000 into 10 to the minus 10 into t by t
ये मिलीमीटर में आएगा। तो 0.4 इंटू 3.2 तो 8 आ गया, और 3 10 to the 3 ऊपर गया तो 10 to the 6 9 आ गया, 48 4.8। ये इस बार इसका जो है क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ आ गई। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बस उस हिसाब से आ, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको एक फ्रेश क्वेश्चन देता हूं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, ठीक है ना। मैं एक फ्रेश क्वेश्चन दे देता हूं, तो दैट वुड बी बेटर। इसका तो जो कैलकुलेशन था वो कर चुका हूं मैं एक फ्रेश क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नहीं तो दिक्कत आ सकता है इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन ये है कि भाई स्प्लिट लेंस focal length is equal to again 10 सेंटीमीटर, नहीं फिर से इस बार 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस बार जो सेपरेशन है ये वाला दैट इज सपोज 0.6 मिलीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया सपोज 2 मीटर, ठीक है। अब करो सॉल्व। Akshit has asked question and that is point source. I don't know, ये आजकल ना मैं देख रहा हूँ, ये पहले नहीं होता था, कैमरा में ना बड़ा आगे पीछे करता रहता, फोकसिंग करता रहता, बड़ी प्रॉब्लम। पहले इतना नहीं होता था, आजकल ज्यादा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पॉइंट सोर्स 0.4 पर 0.4 नीचे, तो व्हाई डोंट वी टेक अस 0.8 मिलीमीटर। अक्षित ने भी यही कमेंट किया, पता नहीं आजकल क्यों कैमरा इतना ज्यादा शेक होता है, ये पहले नहीं होता था। आई डोंट नो, कोई कैमरा सेटिंग वेटिंग अगर है, एनीबॉडी नोस, तो आई विल डू दैट, बट मैंने भी एक बार दो बार ट्राई करके देखा तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। हाँ, तो आंसरिंग अक्षित क्वेश्चन, हमें एक्चुअली पता पिछले बार हुआ क्या, पिछले बार बाई चांस क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 आया था, तो पिछले बार पता क्या हुआ था, इसका ऑब्जेक्ट दिया है ना और मैग्निफिकेशन ट्वाइस है, तो इस वजह से क्या हो गया था पिछले बार कि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और वो 10 पे था और इमेज डिस्टेंस 20 आया था, तो मैग्निफिकेशन डबल हो गया, तो यानी इसका इमेज यहाँ बन गया, यानी ये अब यहाँ पे आ गया सब। बाई चांस ये पिछले बार बाई चांस हुआ था, पिछले बार बाई चांस ये हुआ था कि ये जो सोर्स है एक्चुअल वो S1 यहाँ पे आ गया या S2 यहाँ पे आ गया, वो इस लेंस की वजह से यहाँ पे आया, इस लेंस की वजह से ये ऑब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कैलकुलेट होता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का हाइट ये हो गया और इमेज का हाइट डबल है, तो देयरफॉर क्या हो गया, डबल मतलब यहाँ से 20 आ गया एक, तो इसका इमेज ये बन गया। बाई चांस पिछले बार क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मतलब इसका इमेज यहाँ पे आ गया, इस लेंस की वजह से यहाँ पे इमेज है, तभी मैंने बोला लेंस 1 की वजह से इमेज 1 यहाँ पे है और लेंस 2 की वजह से इमेज 2 यहाँ पे है। और बाई चांस क्योंकि डबलिंग हुआ है, तो देयरफॉर हाइट डबल होते ही इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया, इसके हाइट डबल होते ही इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया, है ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया, लेकिन ये बाई चांस की बात, इसलिए मैंने जानबूझ के इस बार ऐसे केस दिया जिसमें डबलिंग नहीं होगा, तो क्या करोगे वो इस केस में टेस्ट। वेवलेंथ, अच्छा अच्छा, हाँ वेवलेंथ वही ले लो, सेम ही ले लो, 6000 ही ले लो, कोई बात, पिछले बार जो लिया, ठीक है ना। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसके क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मत करो, क्या चलो कर भी सकते हो। सबसे पहले मुझे बताओ कि डी का वैल्यू क्या लिया तुमने,
और कैपिटल डी का वैल्यू क्या लिया और फिर उसको यूज करके फ्रिंज विड्थ ओमेगा आ जाए। शिवम से इसकी फोन को अगर थोड़ा हम आगे पीछे कर दें तो इन दैट केस फोकसिंग और रिफोकसिंग में स्टॉप। पता नहीं ऐसे करने से होगा या नहीं होगा। इज इट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस? आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कभी कैमरे के सामने हो तो यार इट इज ट्रीटिंग मी एज ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, अर्जुन से इसकी लाइटिंग से भी फर्क पड़ता है। लाइटिंग और क्या कर सकते हैं। अब ये लाइट करूंगा तो फिर यहाँ पे एक निशान आ जाता है, ट्यूबलाइट का। एक है मेरे पास ट्यूबलाइट, देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। और अगर मैं हट जाता हूँ तो देखो इसको फोकस यहाँ करना पड़ता है, और अगर मैं बीच में आधा कहीं पे हूँ तो कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, so that's where maybe the camera also gets है ना फोकस्ड। ओके, धीरे से इसकी हो सकता है कि क्विक मूवमेंट्स करने से होता है, तो मतलब मैं धीरे धीरे आऊँ ऐसे कर चुपके से। चलो एनीवे, डी का आंसर आ गया। डी का आंसर सब लोग दे रहे 0.3 मिलीमीटर। ध्रुव ने भी, पाठक ने भी दिया है, कार्तिक ने भी दिया है, और आई थिंक एक और जने ने भी दिया। अक्षित, पिछले बार का वो 0.8 क्यों नहीं लिया? आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, ध्रुव ने तो खैर आंसर भी निकाल दिया था। मैंने तुम्हारी आंसर, क्वेश्चन का आंसर किया वैसे पहले। ओके, आर्यन साहू ने भी यही दिया 2.15 और 0.3। जो कैलकुलेशन किया जा रहा है इट सीम्स कि ये हो गया 0.3 मिलीमीटर और डी हो गया 2.15 या कुछ ऐसा। चलो देखता हूँ। सबसे पहली बात तो इस बार जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट हो गया वो हो गया 0.3 मिलीमीटर, ठीक है ना। बड़ा रुको, इतना हड़बड़ी मत करो, अभी थोड़ा सा इशू है इसमें। और वो ये है कि वो इससे हम v निकालो, लाइक 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यानी 30। ये हो गया 1/10, उधर जाएगा तो माइनस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 30 कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3 यानी v इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो गया ना, मैग्निफिकेशन आ गया v बाय u यानी 1.5। तो अगर 1.5 होगा, 1.5 होगा तो देखो क्या होगा, ये 0.6 से ये 0.3 हुआ, 0.3 हुआ ना, तो 0.3 का 1.5 यानी 0.45 हुआ। तो इस केस में क्या होगा देखो, यहां से 0.45 यानी ऐसे होगा। तो देखो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अगर ये हाइट नीचे मानते हो तो 0.3 है, माइनस 0.3 इंटू 1.5, 0.3 माइनस इंटू 1.5 यानी माइनस 0.4। ठीक है, माइनस 0.45। अब देखो थोड़ा ध्यान से किस दैट, ये यहाँ पे 0.3 है और ये हो गया 0.15, ये एक्चुअली इससे कम में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये अगर 0.3 तो यानी सेंट्रल लाइन से कितना दूर है, ये 0.3 और ये 0.45, तो यानी हो गया 0.15। और दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा उस तरफ, है ना। तो 0.15 का डबल बिल्कुल सही है, इसलिए
यानी डी हो जाएगा एक्चुअली ट्वाइस इंटू 0.15 मिलीमीटर, यानी इक्वल टू 0.0, एकदम सही। ध्रुव पाठक से आज की जो नया वो हो रहा है सोर्स बनेगा, उसका वेवलेंथ क्यों सेम लिया जा रहा है ना, उसका वेवलेंथ हम क्यों सेम ले रहे हैं? द आंसर इज दैट, देखो वेवलेंथ ना सिर्फ टेम्पोररी लेंस में बदलता है, लेंस से जब वेव निकल के आएगा तो वेवलेंथ तो वापस वो हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा जो लेंगे हम, वो हम लेंगे पुराना वाला ही, क्योंकि लैम्डा सोर्स से लेके लेंस तक वही है, लेंस के अंदर टेम्पोररी बदला, फिर लेंस के जब बाहर आया फिर वही बन जाएगा लैम्डा। तो यानी जब इंटरफेरेंस बन रहा है जहां पे स्क्रीन में, वहां पे लैम्डा क्या है, तब वही है जो सोर्स का, लेंस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए हम लैम्डा वही ले रहे हैं। तो बाकी तो आएंगे आप, और लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है ये, देयरफॉर जो फ्रिंज विड्थ बनेगा ओमेगा, ओमेगा हो गया, यानी देखो इस बार हाइट ऑफ इमेज 0.45 है, ये देखो। अब तो कैमरा ऐसे हिल रहा है कि पूछो मत, समझ में नहीं आया क्यों हिल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो अब नहीं हो रहा। चलो एनीवे, तो लाइक 0.45 है, तो ओमेगा हो गया 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू डी, तो डी तो v 15 सेंटीमीटर है, यानी 2.15 हो गया बाई स्मॉल डी, तो स्मॉल डी हो गया 0.3 मिलीमीटर, यानी 0.3 इंटू 10⁻⁻3, और इंटू 10⁻3 कर दो, इन दैट केस मिलीमीटर। 0.3 से तो ये हो जाएगा 3 10⁻⁻4 कर देता हूँ, ये 2000 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, चलो यानी 3 2000 हो जाएगा, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 और 6 10 हो जाएगा, पूरा ही कैंसिल। तो इसको कर देता हूँ मैं 0.3 को एस 3 इंटू 10⁻⁻4, इससे क्या होगा, ये और ये पूरा कैंसिल, फिर 3 के 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 4 पॉइंट, यानी इस बार आ जाएगा 4.30 मिलीमीटर, ठीक है ना। शिवम ने भी करेक्ट दे दिया बाद में, और इसके पहले कईयों ने आंसर दिया करेक्ट, शौर्य त्यागी, विरल, हाँ ठीक, जिसने भी कैलकुलेशंस किया, मतलब बाकी अब सबके ऑब्जर्वेशन से कैमरा को लेके, तो अक्षित से इसके जब आप 180 डिग्री कैमरा की तरफ मुड़ जाते हो तब ज्यादा होता है। अब पता नहीं कैमरा कहीं पे आई लोकेटर होता है, तो मुझे लगता है पीछे ना 2 आईज बना दूंगा, सोच रहा हूँ, है ना, 2 फॉल्स आईज लगा दो तो कैमरा को वही आईज लगेगी। ठीक है, चलो ये शिवम ने भी करेक्ट आंसर दे दिया, तो दैट इज द फॉलो अप ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन, और इसमें वो हो गया। अच्छा, अब एक इशू है इज दैट कि अगर मान लो कोई लैम्डा, सॉरी कोई मीडियम दिया जाए, मीडियम, इन दैट केस फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके लेंस का फोकल लेंथ का वैल्यू नया निकालना। नॉट ओनली दैट, लैम्डा भी बदल जाएगा, जैसे सोर्स का जो लैम्डा है, मान लो यहाँ पे कोई मीडियम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, मान लो म्यू इज इक्वल टू 4/3 टाइप, तो ऐसे केस में क्या होगा, और मान लो इसका म्यू है 3/2, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा ना, 2-3 चेंजेस करने पड़ेंगे। लैम्डा पहली बात तो बदल जाएगा, लैम्डा डैश कैसे, 6000 अपॉन 4/3, दैट्स चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल आल्सो चेंज। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो एयर मीडियम लेके लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया हुआ या निकाला हुआ है। अब अगर तुम मीडियम बदलते हो तो इन दैट केस लेंस का फोकल लेंथ भी बदलेगा, ठीक है ना, तो यानी लैम्डा भी बदलेगा, लेंस का फोकल लेंथ बदलेगा, लेंस का जैसे ही फोकल लेंथ बदलेगा तो फिर से वही पैटर्न निकालेंगे इसका इमेज यहाँ पे, फिर एक इमेज उधर भी बनेगा एंड सो ऑन, तो कैलकुलेशंस फिर से होंगी, है ना। तो जैसे इस केस में ये 0.15 है,
और दूसरा जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे ऐसे बनेगा, वो भी यहाँ पे बनेगा। ये तो यहाँ पे बन रहा है 0.15 पे, तो वो भी 0.15 पे बनेगा। तो तभी तो 0.3 लिया, लेकिन अब वो कैलकुलेशन भी बदल जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि देखो मीडियम वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, इनफैक्ट बिलेट लेंस तो अभी तक आया भी नहीं। तो अगर बिलेट लेंस आता है तो इन दैट केस तो पता तो चलेगा क्या करना है। अब भी जो थोड़ी देर पहले आई थिंक धीरज या किसने क्वेश्चन पूछा था, ध्रुव ने शायद पूछा था कि लैम्डा क्यों नहीं बदला। तो लैम्डा बदल सकता है कब, अगर ये मीडियम में बदल देता हूं तो अब हमें लैम्डा भी बदलना पड़ेगा, बाई 4/3 करके वो, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी बदलना पड़ेगा। तो देखो इट विल बिकम ए न्यू क्वेश्चन, तो दैट विल बी डायनामिक। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मीडियम का क्या इफेक्ट होगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज what is called as Fresnel biprism. As you know that all prisms that we take are supposed to be small angle prisms. So that is something that you know. So biprism में हम लोग क्या करते हैं, दो prism लेते हैं, a very small angle prism A with refractive index mu and another of the same kind, ऐसे लिया जाता है, with same A and mu, ठीक है ना, same angle of this and joined together. अब हो सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्योंकि मैंने तो एक 2D फिगर बनाया, तो मैं इसका 3D फिगर भी बना देता हूँ। तो it would be somewhat like this, and this is one of the prisms. And the other prism would be like this. That's the case, ठीक है ना। और फिर इनको ज्वाइन कर दो, तो so that medium continuity रहे हमें, तो that is called as a biprism. यानी biprism को लगाएंगे कैसे ना, ऐसे। By the way, ये जो biprism है, मुझे इनफैक्ट याद है अभी कि कॉलेज में जब हम गए थे तो इंजीनियरिंग करने, मतलब तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था दैट वाज दिस बाइप्रिज्म। और कई बार नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें होता है, हमने बाइप्रिज्म जो है क्लास 12th में पढ़ा नहीं था। अब तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बट उस समय पढ़ा नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वी डन इन द लैब। तो एक तो उस समय लैब में जाने के पहले मैंने वो बाल्टी वाला एक्सपेरिमेंट बताया था ना, कि उस समय रैगिंग पीरियड भी चल रहा था, हम लोग डरे डरे जाते थे, और हमारे लैब असिस्टेंट जो थे वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ठीक है ना। तो मेरे एक फ्रेंड के तो इतना वो घबरा गया, ये जो बाइप्रिज्म है ये उसके हाथ से ही गिर गया। और बाइप्रिज्म जो है ना, ये सारे साइंटिफिक प्रिज्म्स होता है, इन द सेंस कि इनके एंगल होता है 1 डिग्री, 1.25 डिग्री, आधा डिग्री, 1.5 डिग्री, इस तरीके। एंड दे वेरी कॉस्टली आल्सो। जैसे नॉर्मल प्रिज्म तो 100-200 में, 8 रुपए में आ जाता है, 100-150 रुपए में। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तो उसका फाइन हुआ था 500 रुपीज। इमेजिन करो, समझ रहे हो ना। तो 500 रुपीज उस जमाने में, मतलब ये कि आज के दिन में कम से कम 2-3 हजार रुपए हो। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर, ठीक है ना। तो ये हो गया बाइप्रिज्म। इसका एंगल ले लो 1 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, ग्लास का है तो 3/2, और यहाँ पे एक सोर्स है which is let's say at a distance of 10 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो, जैसे मैं पीछे हुआ था तब हुआ। चलो, मे बी दैट इज द केस है। और यहां से सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये है सपोज 290 सेंटीमीटर स्क्रीन, और लैम्डा जो है
4000 angstrom. ठीक है ना? You to find out again the same thing, and that is if you are wondering as to why and how the things will be handled, I mean, the ray diagram will be like this, that one set of ray will go like this. And similarly, another set of ray will go like this. Really? यानी एक्चुअली तो ऐसा है, लेकिन अब ये बन जाएगा S1, ये बन जाएगा S2. और हम लोग यहाँ पे मिनिमम डिविएशन कंडीशन लेंगे. अगर याद करके देखो, डेल्टा का जो फॉर्मूला था, दैट इज म्यू माइनस 1 इनटू ए. अब देख रहे हो कितना बुरी तरीके से हिलता है. आई डोंट नो क्या हो जाता है कैमरा. तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए. उससे क्या होगा, ये जो रे गया और ऐसे करके, तो इसका डेल्टा, दिस इज योर डेल्टा. तो ये क्या आएगा, डेल्टा इनटू दिस आर थीटा टाइप का. तो यानी जो स्मॉल डी होगा, वो होगा, अगर इसको कुछ एल लेते हो सपोज, एल इंटू डेल्टा का डबल. क्यों? क्योंकि डेल्टा इंटू एल तो यही हो गया, और ये भी डेल्टा इंटू एल होगा. ये 2 इंटू डेल्टा इंटू एल. तो एल तो ये आ गया, डेल्टा बोलते हैं म्यू माइनस 1 इंटू एल. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ये हो गया स्मॉल डी. और कैपिटल डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी उधर 290 सेंटीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर. यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू 290 प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेसिकली 3 मीटर. बस अब तो आ ही जाएगा. लेकिन एक चीज है कि क्योंकि हमने एंगल डिग्री में दिया है और हमें पता है कि ये सारे कैलकुलेशंस रेडियंस में करना है, तो बस एक वो चेंज करना है. तो हमें पता है कि पाई होता है, तो 1 डिग्री है यहाँ पे, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी दिस विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू, अगर मीटर में ही कर देते हैं, म्यू माइनस 1, तो म्यू तो 3/2 है, इंटू 3/2 माइनस 1 इंटू ए. ए बोलते क्या होगा, देखो 180 डिग्री पाई होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180. और अगर ये तो सेंटीमीटर में आया, तो इसको मीटर में ही कर दो, बाई 100, है ना. तो 3/2 माइनस 1, हाफ का 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा चीज इसके साथ कैंसिल हो गया. और पाई बाई 10 भी कैंसिल कर देता हूँ, पाई बाई 1800, दैट्स पाई बाई 18 मीटर. यानी फाइनली ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा लैम्डा. अच्छा लैम्डा तो मैंने दिया नहीं है, अच्छा दिया है, तो 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू डी, तो डी आ गया 3 मीटर अपॉन स्मॉल डी इज पाई बाई 1800, पाई इंटू 1800, और अगर मिलीमीटर में चाहते हो तो इंटू 10 टू द पावर. दैट्स इट. तो 10 टू द पावर 3 4 5 6 7 8, तो 500 हो गया. 18 into 12, 180 plus 36, it's 216 by 5, or 216 by 100 by, ठीक है. या तो so that is the omega this time. ठीक है, आई होप दैट्स ओके. यानी इन जनरल देखो क्या हो गया, इन जनरल ये होगा कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L होता है, तो इन जनरल ये हो जाएगा स्मॉल d इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू एल, ये वाला, और कैपिटल डी हो जाएगा कैपिटल एल प्लस। तो अब तो फ्रिंज विड्थ आएगा, तो यानी ये हो जाएगा इन जनरल। इन जनरल ये स्मॉल डी लेना होता है और ये कैपिटल डी लेना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करना होता है। सिंपल है, सिंपल स्टेप। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। दो प्रिज्म को जोड़ के जो वाईडीएसी काइंड ऑफ सेटअप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ये है क्रक्स, दिस इज क्रक्स। ठीक है, ये बात चेक कर लो whether all things are right here or अच्छा हाँ, सही पॉइंट आउट किया है, इसका डबल पॉइंट आउट किया है वेरल ने। हाँ बिल्कुल सही है, सही, ये डबल होगा, हमने डबल किया है वैसे, और यहाँ लिखना भूल गए, ये डबल किया है और यहाँ लिखा नहीं। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो स्मॉल डी में डबल होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू एल का डबल, क्योंकि एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो डबल करके तब जाके स्मॉल डी। ठीक, पॉइंटेड आउट। अच्छा, ये तो हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। हमने दो तीन सेटअप पढ़ा, एक बिलेट लेंस पढ़ा, एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ा, एक लॉयड्स मिरर भी पढ़ा यस्टरडे में। अब हम एक और सेटअप बनाएंगे, दैट इज लिटिल डिफरेंट ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मैं एक प्रैक्टिकल वो बताऊंगा, एंड दैट इज आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव सीन रियली, बट फ्रॉम if you go to any rural setup, you will be able to see certain things which you may not be able to see in cities and towns, and that is ये जो डक्स होते हैं, डक्स में देखना, sometimes while swimming on the water, the ducks will bend their long necks and poke somewhere at the belly. You might be wondering what it is doing. Actually क्या ना, उसके बेली के नीचे कुछ ग्लैंड्स हैं और उस ग्लैंड में कुछ ऑयल होता है, ठीक है ना। वो ऑयल क्या करता है, जो फेदर्स होता है डक के, उसके और वाटर के बीच में एक लेयर फॉर्म करता है, तो उससे क्या होता है ना, फेदर्स डू नॉट बिकम वेट। जो फेदर्स अगर वेट हो जाएंगे तो दैट्स लिटिल इनकन्वीनियंट फॉर स्विमिंग, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज दैट इट विल आल्सो मेक द डक हेवियर, तो यानी डूबने का खतरा होता है। तो that's how ducks actually, you know, without any problems wade on water, or you can say swim on water, ठीक है, that's the fact. जब यही डक्स पानी से जमीन पे आते हैं, तो मैंने देखा हुआ है is that इनकी जो बेली साइड होता है ना, उसमें बड़े अच्छे से कलरिशंस होता है, कलरिंग होता है बड़े नाइसली। ये हो गया फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकंड एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू कैन डू इवन एट योर होम आल्सो, दैट इज जैसे हम लोग कपड़े धोने के पहले देखना सर्फ या साबुन डाल के उसको पानी को वैसे करते हैं, पानी को विस्क करते हैं। क्यों करते हैं ना, सो दैट बबल्स आ जाए, फ्रॉथिंग जिसको हम लोग कहते हैं, बबल्स आ जाए। अब इन बबल्स को थोड़ा ध्यान से देख, अगर कोई बड़ा बबल हो तो फॉलो कर, तो देखना तुम अगर बबल को ध्यान से देखोगे तो देखना उसके ऊपर कलरेशंस होता है, और वो डायनेमिक कलर होता है। यानी अगर तुम एक जगह फोकस करोगे तो देखना वहां पे येलो है, तो देर बाद रेड हो जाएगा, फिर ब्लूइश हो जाएगा, फिर ग्रीनिश हो जाएगा, कलर बदलता रहता है समय के साथ। दैट्स द सेकंड एक्सपीरियंस। थर्ड एक्सपीरियंस, take any DVD or a compact disc and then keep it at some angle. You will see that there is a colored coloration in that particular disc. Now do one thing, just change the angle a little bit. You will see that the color pattern is entirely changed. The color pattern is entirely changed. तो यानी अच्छा, या तो अगर उसको फिक्स रख के खुद अपने गर्दन को इधर उधर करो तो देखना तो भी कलर पैटर्न जो है टोटली अलग नजर आए। यानी कलरेशन का एक पैटर्न होता है। Now how do you really explain the coloration pattern? है ना? So the explanation is based on what is called as thin film analysis. यानी अब हम बात कर रहे हैं interference in thin films. वैसे पता क्या होता है, ये जो thin films होता है इसमें जनरल एक्सप्रेशन मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि लाइट तो कोई भी एंगल पे आ सकता है। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे दैट इज फॉर वर्टिकल या नियर वर्टिकल और नियर वर्टिकल बीम। तो एसेंशियली होगा क्या, है ना? तो एसेंशियली ये होगा कि देखो सपोज एक फिल्म है, या थोड़ा मोटा ले, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। नाउ यू माइट से फिल्म इतना मोटा हो गया कब से ना, एक थिन फिल्म 100th ऑफ ए मिलीमीटर या ऐसे कुछ थिकनेस का भी हो सकता है। तो मैंने सब उसको बड़ा करके देख रहा हूँ, उसकी थिकनेस तो क्या नजर आएगा, ये उसका थिकनेस बड़ा करके देख रहा हूँ, क्योंकि नियर वर्टिकल व्यूइंग कर रहा हूं मैं, तो यानी क्या होगा ना, एक रे तो यू आ गया, वो रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और जो दूसरा है वो यहां से रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे किया, और फिर ठीक है। तो ये हो गया एयर, ये हो गया फिल्म। तो मान लो इस फिल्म का थिकनेस टी है, ठीक है ना, थिकनेस टी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू। तो यहाँ पे अगर तुम स्क्रीन रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। सपोज मैंने इसका थिकनेस दे दिया सपोज 0.8 माइक्रॉन, और मान लो ये जो लाइट आया, इसका लाइट है सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, और इसका थिकनेस दे दिया गया 0.8 माइक्रॉन, इसका थिकनेस दिया हुआ। तो क्वेश्चन इज ये जो लैम्डा है, विल इट शो ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ये क्वेश्चन है, या इंटरमीडिएट, दैट्स द क्वेश्चन। कि यहाँ पे इस लाइट के वजह से यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन वगैरह रख देता हूँ तो उसमें डार्क होगा, ब्राइट होगा, या इंटरमीडिएट, क्या होगा बताना, दैट इज द क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। रोहन हैज पॉइंटेड आउट द वेरी करेक्ट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इज दैट, देखना ऑयल स्पिल्स होता है कई बार, इनफैक्ट ऑयल स्पिल तक जाने की जरूरत नहीं, वो तो चलो समुद्र में होता है, तो कहां से कौन हम देखेंगे, कहां हम देखने जाएंगे। कई बार देखना गाड़ी का जो मोबिल होता है या ऑयल होता है, वो देखना कई बार रोड पे गिर जाता है, अलग अलग रीजन होता है, कई बार इंजन मैल फंक्शनिंग, लीकेज वगैरह इस टाइप का। तो जो रोड पे ऑयल गिरा होता है, उसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो देखना कलर पैटर्न, दे आर ऑल थिन फिल्म। एंड रोहन ने जो एग्जांपल दिया वो है ऑयल स्पिल्स का, दैट्स अ वेरी करेक्ट एग्जांपल। ऑयल पानी के ऊपर भी जो है ना, वो थिन लेयर ऑफ ऑयल बन जाता है, तो उसमें भी यही होगा, एक लाइट यहाँ से डायरेक्ट जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और एक रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, फिर ऐसे किया, तो दो रेस के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, तो वो या तो डार्क होगा, या तो ब्राइट होगा, या तो इंटरमीडिएट होगा। तो क्या होगा इज व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चेक करो। शिवा में आस्क्ड व्हाट इज द यू। यू कुछ नहीं बेटे, इट्स अ सेट ऑफ पैराक्सियल रेज, it's a thin tube of rays, or maybe you can call it as just few rays coming together. U से कोई मतलब नहीं।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो U means refractive index. वैसे तो वाटर है, थिन फिल्म वाटर है, तो लाइक यू कैन टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज इक्वल टू 4/3 1. Let's start and let's discuss in a little bit general fashion, and then we can probably move into particular discussion. ठीक है ना? वो ये होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखो एक अच्छे अच्छे से is that ज्योमेट्रिकल एक्स्ट्रा पाथ क्या होगा, क्योंकि नियर वर्टिकल है तो एक तो ऐसे हो गया, फिर चला गया, जो दूसरा रे है वो यहां से ऐसे आया, यानी ज्योमेट्रिकल एक्स्ट्रा पाथ इज इक्वल टू 2. लेकिन हमें पता है कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू होता है ना, तो हमें पता है कि ऑप्टिकल एक्स्ट्रा पाथ इज इक्वल टू 2 म्यू, और इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा. लेकिन एक इश्यू है, पता है क्या, कि अगर ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन होगा, दिस विल लीड टू अ पाई फेज डिफरेंस. बट यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें नो फेज डिफरेंस. एक पाई का फेज डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पे नहीं होगा. तो ये कैसे, क्योंकि ये एयर है, ये फिल्म है, तो यानी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हार्डर सरफेस में हो रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना, हार्डर बोलते क्या होता है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और फिल्म का 1.3 है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन अ हार्डर सरफेस. तो यानी यहाँ पे एक पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट, जबकि यहाँ पे नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, दैट इज हैपनिंग ऑन अ सॉफ्टर सरफेस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस मीडियम के ऊपर वो एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन हार्डर सरफेस हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन सॉफ्टर सरफेस हो रहा है. तो मैं लिख देता हूँ रीजन इज दैट ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना, दैट इज ऑन अ सॉफ्टर सरफेस. यहाँ पे रिफ्लेक्शन इज ऑन अ, तो ये देखो, कोई सॉलिड लिक्विड सरफेस होता तो हार्ड सॉफ्ट समझ में आता है. ऑप्टिकल फिनोमेना में इट्स ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
तो इसमें से नो फेज डिफरेंस, और यहाँ पे हो रहा है, तो यानी ऑप्टिकल जो एक्स्ट्रा पाथ है ना वो 2 म्यूटी नहीं है, 2 म्यूटी प्लस पाई हो जाएगा, मतलब 2 म्यूटी प्लस क्या बोलते हैं लैम्डा बाई 2। तो यानी इस बार कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा कि इफ 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इंप्लाइज डार्क। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री ऑप्टिकली तो 2 म्यूटी पाथ डिफरेंस हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे एक लैम्डा बाई 2 भी हो रखा है, इसलिए 2 म्यूटी अगर n लैम्डा होता तो डार्क हो जाए, है ना? और 2 म्यूटी अगर n माइनस हाफ लैम्डा होता है तो इंप्लाइज राइट हो जाए। ठीक है, देख लो। तो इस केस में चेक किया जाए, तो इस केस में म्यू बोलते 0.8 माइक्रोन है, तो यानी पाथ डिफरेंस हो गया 2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये दिख रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.6 और लैम्डा 5000 है, तो अगर मैं n निकालता हूं तो n हो जाएगा इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, है ना? ये तो ये आ जाएगा इक्वल टू अच्छा एक म्यू 1.3। ठीक है, मेरे 10 टू द पावर 4 यानी 16 इंटू 13 इंटू 100 बाई 5, देन इट्स अ इंटीजर। तो इंटीजर है तो फिर क्या कंक्लूड करोगे? अब बताओ, ये इंटीजर आ गया, मतलब पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा में कर रहा हूं तो इंटीजर आ रहा है, यानी क्या कंक्लूड करोगे? क्या कंक्लूड करोगे फिर? इसको देख के कंक्लूड करो, यानी n कितना आ गया? n आ गया 2 म्यू टी बाई लैम्डा, तो मैंने वही किया 2 म्यू और टी, 2 म्यू टी, तो इसका कैलकुलेशन किया तो n आ गया 2 म्यू टी बाई लैम्डा, लैम्डा 5000 एक्स्ट्रा, अच्छा सॉरी 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 5000, सॉरी इसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। 5000 की है ना, तो यानी 10 to the power 7, यानी 16 into 30 by 5000, तो 5000 अगर मेरे 10 to the 7 आ गया, 6 आ गया, 1 तो 16 into 1.3 by 5, ये इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? नहीं, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक किया है, अभी कैलकुलेशन हुआ नहीं होगा। तो यानी 16 into 1.3 by 5, so I can write it as 10 or 2, 32 into 1.3 by 1.10 by 2 into 32 by 10. Yeah.
3.2 into 1.3 is what you're getting. तो यानी देखो ना ये इंटीजर आ रहा है और ना ही इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। बेसिकली आ जाएगा 4.16। तो देखो अगर ये तो यानी एज पर दी असेसमेंट दैट वी हैव डन, अगर ये 4 होता तो डार्क होता, अगर ये 4.5 होता तो ये ब्राइट होता, और ये 4.16 है, यानी क्या हो गया कंक्लूजन, ये इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अच्छा अगर तुम जानना चाहते हो कि इंटेंसिटी क्या बनेगा तो आई थिंक अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि 0.16 ऑफ लैम्डा आ रहा है, तो यानी 0.16 यानी 5 हो जाएगा इक्वल टू 0.16 इंटू 2 पाई, यानी जो भी आ रहा है 0.32 पाई, यानी जो आई बनेगा वो बनेगा 4I0 cos square 5, where 5 is this 5 एक्चुअली है ना, 4 से कोई मतलब नहीं है, 0.16 से मतलब, तो 1 अगर होता है तो दैट मींस दैट इज 2 पाई, तो 0.16 में क्या हो जाएगा, तब 0.16 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, तो यानी फेज डिफरेंस 5 इज इक्वल टू दिस, तो आई हो जाएगा 4I0 cos square 5, दैट्स हाउ 5/2, ये हो जाएगा आई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कल को अगर पूछा जाए कि भाई स्क्रीन में इंटेंसिटी क्या दिखेगा, तो ये आई नॉट इंटेंसिटी आया मान लो, ठीक है ना, सपोज आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आउटपुट, तो आउटपुट आएगा ये वाला इंटेंसिटी 4I0 cos square 5/2, ठीक है ना। एंड जो 5 आएगा वो आएगा ये 0.16 के हिसाब से, 4 तो कंप्लीट है तो उससे कुछ करना नहीं मुझे 0.16 से मतलब, तो यानी 5 हो जाएगा 0.16 इंटू 2 पाई, और ये तो यानी बेसिकली ये हो जाएगा 0.16 पाई। चलो देखो ये नंबर तो थोड़ा सा इस बार उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि मैंने तो कोई सोच समझ के वैल्यू नहीं दिया, बट एग्जाम में ऐसे वैल्यू देंगे कि ये वाला कैलकुलेट करना आसान होगा। 5/2 मतलब 5/2 विल टर्न आउट टू बी 30 डिग्री काइंड ऑफ, या 60 डिग्री, या जो भी आ रहा है 45 डिग्री वगैरह टाइप ऑफ, तो अगर ऐसे होता तो इन दैट केस हम कैलकुलेट करके इंटेंसिटी भी बता सकते। बाकी ब्राइट डार्क होगा क्या होगा वो पता चल गया, 4 होता तो डार्क होता, 4.5 होता तो ब्राइट होता, दिस इज समवेयर इन बिटवीन 4.16, यानी इंटरमीडिएट आता, ठीक है। इंटरमीडिएट का के हिसाब से आंसर सब लोगों ने सही दिया है। पहले मैंने ही गलत लिखा था, वो मैंने 5 कर दिया था गलती से 5000 की जगह, इसलिए मेरा आंसर आ रहा था डार्क, और कईयों ने अभी आंसर डार्क दिए थे बिकॉज दे वर फॉलोइंग माय रॉन्ग कैलकुलेशन। अब तो मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दिया, तो उसके हिसाब से फाइनली इंटरमीडिएट इज द आंसर। ठीक है, दैट्स राइट। आर्यन, मनन, ध्रुव, रोहन निजावन, वेरल, ठीक है, you're all on right track। तो हमने अभी दो चीजें निकाला, एक तो यहाँ पे ब्राइट होगा, डार्क होगा, या इंटरमीडिएट होगा, और अगर कल को क्वेश्चन आता है कि कितना होगा इंटेंसिटी, अगर इनपुट इंटेंसिटी आई नॉट देता हूं, तो इन दैट केस वहां पे इंटेंसिटी किस तरीके से बनेगा उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो आ गया 4I0 cos square 5/2। चलो ठीक है, तो लाइक आज इतना ही करेंगे। वी वर डूइंग मेनली ऑन इंटरफेरेंस, तो अब इंटरफेरेंस में कुछ ज्यादा है नहीं, फिल्म का बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल वाइंड इट अप, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और फिनोमेना जैसे पोलराइजेशन वगैरह, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, सो दीज आर थिंग्स दैट वी विल टेक अप एंड वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है ना। तो कल जो है लगभग हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट काफी हद तक खत्म हो जाएगा। टुमारो इज थर्सडे,
अच्छा हाँ, कल क्लास होगा नहीं होगा पता नहीं, वैसे होना चाहिए, है ना? तो देखते हैं होता है नहीं होता है। तो कल हम लोग लगभग जो है वाइंड अप कर लेंगे सिलेबस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और अगर कल नहीं भी खत्म होता है तो मैक्सिमम मतलब इस वीक में वेव ऑप्टिक्स जो है खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर EM वेव्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, लाइक नॉट मच इज लेफ्ट अभी। तो फिजिक्स का 12th का सिलेबस थोड़ा सा कम है, चलो कोई नहीं, बड़े बड़े तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही फिर, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अननोन कौन है?